السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں مجاہد خان. پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 38 ارب روپے مالیت کے رمضان ریلیف پیکج 2026 کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. نائب وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے. پاکستان، اٹلی، اسپین اور یونان نے غیر قانونی ترک وطن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مربوط حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے. وزیر منصوبہ بندی نے حلقے کی سطح پر ترقیاتی اعداد و شمار کی ڈائریکٹری شائع کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر تعلیم نے لڑکیوں کی تعلیم کے اعداد و شمار اور رجحانات کی رپورٹ 2023-24 جاری کر دی ہے. پاکستان نے تیل و گیس کی تلاش کے لیے 11 آن شور بلاکس ایوارڈ کر دیے ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے پاس پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی اور معاونت میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. بلوچستان کے ضلع جوب میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں بھارت کے حمایت یافتہ 10 خوارج ہلاک کر دیے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخ میں پہلی بار سرمایہ کاروں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج صوبے میں پاکستان کی پہلی ای ٹیکسی اسکیم کا آغاز کر دیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے دینی مدارس کے طلباء کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بنوں میں انوویشن ہب قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج احمد آباد میں ICC T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے کے ایک میچ میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا. اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے مجاہد خان. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ رمضان ریلیف پیکج 2026 کا باضابطہ آغاز کیا گیا ہے، جس کے لیے 38 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وہ آج اسلام آباد میں پرائم منسٹر رمضان ریلیف پیکج 2026 پر عمل درآمد کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ سال کی امدادی رقم کو 5,000 سے بڑھا کر 13,000 فی کس کی ہے، تاکہ مستحق افراد کی رمضان کے بابرکت مہینے میں مالی مدد کی جائے. انہوں نے کہا کہ یہ ملک کا سب سے بڑا اور جامع رمضان ریلیف پیکج ہے. شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے سال کے کامیاب تجربے پر مبنی وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج 2026 کی تقسیم بھی اسی شفاف ڈیجیٹل نظام کے ذریعے کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے نقد مالی مدد مستحق افراد تک پہنچائی جا رہی ہے. اجلاس کو وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج 2026 کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی. بتایا گیا کہ 8 رمضان المبارک تک 64% مستحق افراد تک رقوم پہنچائی جا چکی ہے، جبکہ بقیہ مستحق افراد کو رقوم کی ادائیگی کے حوالے سے تصدیق اور جانچ کا عمل تیزی سے جاری ہے. اجلاس کو بتایا گیا کہ PM رمضان پیکج کا دائرہ کار پورے ملک بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں بھی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز کی قیادت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز شہید کے گھر مانسہرہ گئے. وزیر اعظم نے شہید کی والدہ، اہلیہ اور بچوں سمیت دیگر لواحقین سے ملاقات کی اور شہید کے لیے دعا کی. تو وزیر اعظم لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز شہید کی قبر پر بھی گئے، فاتحہ خوانی کی. شہباز شریف نے کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز شہید نے وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر جامع شہادت نوش کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. انہوں نے کہا کہ قوم ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی. وزیر اعظم نے مانسہرہ میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز شہید کے نام سے دانش اسکول کے قیام کا بھی اعلان کیا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر سعودی عرب میں ہیں، جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی وزارتی اجلاس میں شرکت کریں گے. کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچنے پر اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مستقل نمائندے فواد شیر، سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق اور جدہ میں قونصل جنرل سعید مصطفیٰ ربانی نے ان کا استقبال کیا.
पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी तर्क वतन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के लिए मरबूत हिकमत अमली पर इत्तफाक किया है, जिसमें मुश्तरका पॉलिसी, लाहे अमल और फौरी रद्द अमल का तरीक़ाकार शामिल है। ये इत्तफाक़ राय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली, स्पेन और यूनान के अपने हम मनसबों के साथ रोम में गैर कानूनी तर्क वतन को रोकने के लिए 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात में हुआ। यूरोपीय शराकतदारों ने गैर कानूनी हिजरत में 47% कमी को नोट करते हुए पाकिस्तान के मजबूत इक़दामात को सराहा और यूरोपीय यूनियन से ताउन और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने ऐलान किया है कि तरक्याती इशारियों के बारे में मालूमात की फराहमी के लिए हल्के की सतह पर तरक्याती इदाद-ओ-शुमार की डायरेक्टरी शाया की जाएगी। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने इस सिलसिले में अपना काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से तरक्याती शोबे में अवामी नुमाइंदों के दरमियान मुस्बत मुसाबकती अमल तेज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने फोरम से खिताब करते हुए एक जामे आलमी डिजिटल निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत से महज चंद अफराद के बजाय बहुत से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए और आलमी मेयारात की तश्कील में तरक्की पजीर ममालिक का हिस्सा होना चाहिए। वफाकी वज़ीर तालीम और पेशावराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी ने लड़कियों के तालीमी अदाद-ओ-शुमार और रुझानात के हवाले से साल 2023-24 के लिए रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में पाकिस्तान भर से लड़कियों की तालीम के हवाले से पेशरफ्त की तफसीलात से आगाह किया गया है। इसके अलावा मुस्तकिल चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली गई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों में 5वीं तक तालीम हासिल करने की शरह 75% से बढ़कर 89% हो गई है, जो हर साल तालीम के हुसूल, सहूलियात और ढांचा जाती तरक्की में तेजी की अक्कास है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार मुस्तकबिल की पॉलिसी साजी के लिए बुनियाद की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम के लिए संजीदा इक़दामात अब फौरी कौमी तरजीह है और हुकूमत इस सिलसिले में तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाएगी। पाकिस्तान ने तेल और गैस की तलाश के लिए 11 ऑन शोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए हैं। पेट्रोलियम कंसेशन मुआहदों और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक मौजूद थे। इन मुआहदों से अगले 3 साल में तेल और गैस की तलाश के शोबे में 8 अरब 66 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। इसके अलावा 27 करोड़ 60 लाख रुपए समाजी बहबूद के इक़दामात पर खर्च किए जाएंगे। ये ब्लॉक्स ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, माड़ी एनर्जीज लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड और प्राइम ग्लोबल एनर्जीज को अवार्ड किए गए हैं। अवार्ड किए गए ब्लॉक्स में बलूचिस्तान के 8, सिंध के 2 और पंजाब का 1 ब्लॉक शामिल है। तकरीब से खिताब करते हुए अली परवेज मलिक ने मुआहदों पर दस्तखत को हुकूमत की मकामी वसाइल की तलाश और सरमायाकारी राग़िब करने की कोशिशों में अहम संग मील करार दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर की सुबह 10:30 बजे तलब किया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हर पार्लियामानी साल के आगाज पर बुलाया जाता है। सदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान की हैसियत से ये उनका नवा खिताब होगा। उधर सदर ने कौमी असम्बली का इजलास भी मंगल को दोपहर 3 बजे तलब किया है, जबकि सेनेट का इजलास कल सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में फिर शुरू होगा। दोनों ऐवानों में कानून साजी के अलावा कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के अमूर पर बहस होगी। पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले के 19 साल गुजरने के बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों के अहले खाना की हालत इंसार पर भारतीय हुकूमत की बेहिसी पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। ये बात वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया पर ब्रीफिंग में एक सवाल का जवाब देते हुए कही। तर्जुमान ने कहा कि ये सख्त रवैया भारत की सरजमीन पर मासूम पाकिस्तानियों और दीगर शहरियों के खिलाफ किए गए घिनौने दहशतगर्द हमले में एक सरकारी और सियासी साथी के तौर पर उसके किरदार को साबित करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान चारों मुजरिमों की बेशर्मी से बरी होने की भी मजम्मत करती है। ताहिर इंदराबी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान एक मुनसिफाना अदालती कार्रवाई का मुतालबा करती है कि समझौता एक्सप्रेस दहशतगर्दाना हमले के मुलजिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور کیمپوں پر پاکستان کے جوابی حملوں کے بارے میں بھارتی وزارت خارجہ کے حالیہ بیان کے حوالے سے ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ یہ بیان ہمارے اس موقف کی تصدیق کرتا ہے کہ بھارت BLA فتنہ ہندوستان اور خطے میں دیگر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کے ذریعے پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس دہشت گردی کی سرپرستی اور اس کی معاونت میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کا حالیہ بیان اور بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کے بعد دیا گیا بیان بھی پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دینے میں بھارت کے ملوث ہونے کے موقف کو تقویت دیتا ہے اور اس سلسلے میں واضح ثبوت فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج صوبے میں پاکستان کی پہلی ٹیکسی اسکیم کا آغاز کیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں پاکستان کی اولین ٹیکسی اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ اس ماحول دوست اسکیم کے پہلے مرحلے میں 1100 ٹیکسیاں فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں خواتین کو روزگار کے بہت سے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ جو ہمارے مرد حضرات کو حاصل ہیں وہی مواقع اب مسلم لیگ نون کی حکومت میں پنجاب کی خاتون کو، پنجاب کی بیٹی کو، پنجاب کی ماں کو، پنجاب کی بہن کو بھی اویلیبل ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ ماحول دوست 1500 گرین الیکٹرک بس سے متعارف کروانے سے پنجاب کے شعبہ ٹرانسپورٹ میں انقلاب آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مؤثر حکومتی اقدامات کے باعث صوبے میں ماحولیاتی آلودگی کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان بازاروں کو مستقل سہولت بازاروں میں بدل دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ٹیکسیاں حاصل کرنے والے متعدد خوش نصیبوں میں چابیاں تقسیم کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا کہ ہر ٹیکسی میں پینک بٹن نصب ہوگا جو سیف سٹی اتھارٹی کنٹرول روم سے منسلک ہوگا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت آج کراچی میں ایک اجلاس میں سکر براج کی بحالی اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ بیراج کے تاریخی دروازوں کی بڑے پیمانے پر تبدیلی اور سول اور مکینیکل اپ گریڈیشن کا کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دینی مدارس کے طلباء کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے بنوں میں انوویشن ہب قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ بنوں میں باران ڈیم سائٹ پر سفاری پارک بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 2026-27 کی تیاری پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بلوچستان کے ضلع جوب میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی میں 10 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ منگل کو بلوچستان کے ضلع جوب میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے بعد جس میں 8 بھارتی حمایت یافتہ خوارج کو کامیابی سے ہلاک کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز نے گزشتہ روز ضلع میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی کی تاکہ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے چھپے ہوئے خوارج کو تلاش کیا جا سکے۔ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے مذہب کی آڑ میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے پاکستان میں مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کو مسلسل نشانہ بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا میں مساجد بالخصوص فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا نشانہ بنی رہیں۔ رواں ماہ اسلام آباد کی مسجد پر خودکش حملے میں متعدد نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ 2023 میں پولیس لائنز پشاور اور ہنگو میں 2 مساجد میں دھماکوں میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ مارچ 2022 میں پشاور کی کچھ رسالدار مسجد میں ایک بم دھماکے میں کئی بے گناہ افراد کی جانیں گئیں۔ مارچ 2017 میں پارا چنار میں ایک مسجد کے قریب کار بم دھماکے میں کئی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ ستمبر 2016 میں ضلع محمد میں خودکش حملے میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ جنوری 2015 میں شکارپور کی ایک مسجد میں ہونے والے دھماکے میں کئی نمازیوں کی جانیں گئیں۔ فروری 2012 میں پارا چنار بازار میں ایک مسجد میں خودکش حملے میں متعدد نمازی شہید ہوئے۔ اسی طرح درہ آدم خیل، ضلع کرم اور کوہاٹ میں مساجد اور امام بارگاہوں میں کئی خودکش دھماکوں میں متعدد نمازی شہید اور زخمی ہوئے۔ ممتاز علماء کرام کا کہنا ہے کہ مساجد اور عبادت گاہوں کو معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے کبھی بھی اسلام کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के 61वें इजलास में वफाकी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ अब्दुल खालिक शेख ने किया। वफाकी सेक्रेटरी ने कहा कि इंसानी हकूक़ चंद लोगों के लिए या सिर्फ बेहतर हालात में इस्तेमाल की जाने वाली सहूलत नहीं, बल्कि उन्हें गैर यकीनी सूरत हाल, तनाज़ात और पेचीदा आलमी चैलेंजेस के दौरान भी महफूज और यकीनी बनाया जाना चाहिए। इंसानी हकूक़ काउंसिल का मुंतखब रुकन होने की हैसियत से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूलों के मुताबिक मुकालमे, कसीर जहती ताउन और इंसानी हकूक़ के आलमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आलमी और इलाक़ाई इंसानी हकूक़ की बिगड़ती सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाई और अफ़गानिस्तान गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फ़लस्तीन में जारी इंसानी बहरान की जानिब तवज्जो मबसूल कराते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ जारी मज़ालिम और अदम एहतसाब इस्तेमारी पॉलिसियों और गैर कानूनी कब्ज़े के फ़रोग़ का रास्ता हमवार कर रहे हैं। उन्होंने बढ़ती हुई मजहबी अदम बर्दाश्त, खुसूसन इस्लामोफोबिया के सियासी और अवामी बयानिए में इस्तेमाल पर भी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वह नफ़रत, इम्तियाज़ और माशरती अदम मसावात के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात करे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार कर लिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक NIA ने ज़मीर अहमद और तुफ़ैल अहमद नामी नौजवानों को श्रीनगर और गांदरबल के अजला से घरों पर छापों के दौरान गिरफ्तार किया। उधर भारत ने अपनी रियासती दहशतगर्दी में तेजी लाने के लिए स्नो लेपर्ड के नाम से एक नई यूनिट तश्कील दी है। इस इक़दाम का मकसद मकबूजा इलाके के बर्फीले पहाड़ी इलाकों में कार्रवाइयां करना है। भारतीय पुलिस ने 100 अहलकारों पर मुश्तमिल खुसूसी स्क्वाड के क़याम का ऐलान किया है, जो शदीद मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में कार्रवाइयां करेगा। ये इक़दाम मकबूजा इलाके में हालात मामूल के मुताबिक होने के भारत के मुसलसल दावों के दौरान सामने आया, जिनके बारे में मुबसरीन का कहना है कि ये दावे लड़ाका फॉर्मेशंस की मुसलसल तौसी के बिल्कुल बरक्स हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में जम्मू के मुख्तलिफ कॉलेजों के सैकड़ों तलबा ने शहर के डोगरा चौक के करीब एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बशन्ना के इलाके में 3 साला बच्ची की असमत दरी में मुलव्वस मुजरिमों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस घिनौने जुर्म के खिलाफ नारे लगाते हुए तलबा ने शदीद बरहमी और गुस्से का इजहार किया और मुतासिरा बच्ची को इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए मुजरिम को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कनाडा में एक और सिख रहनुमा को कत्ल की धमकी दी गई है, जिससे जाहिर होता है कि भारत मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरहद पर कार्रवाइयां बाकायदा पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। कैनेडियन पुलिस ने सिख रहनुमा मोनिंदर सिंह की जान को लाहक संगीन खतरे का इंतबाह जारी किया है। आलमी नशरियाती इदारे ग्लोबल न्यूज़ के मुताबिक खुफिया इत्तलात से जाहिर होता है कि सिख फेडरेशन ऑफ कनाडा के सरबराह मोनिंदर सिंह और उनके अहल खाना की जान को खतरा है। 2022 में भी मकतूल रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के हमरा मोनिंदर सिंह को कत्ल की धमकी मौसूल हुई थी। ग्लोबल न्यूज़ के मुताबिक कैनेडियन हुकाम ने कहा है कि भारतीय हुकूमत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत, गलत मालूमात फैलाने और बैरूनी दबाव डालने में मुलव्विस है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों की पुष्टपनाही और सहूलतकारी कर रही है। अफगान अखबार हश्त सुबह ने तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों का इंकशाफ किया है। हश्त सुबह के मुताबिक तालिबान ने सुबह गजनी में अलकायदा और फितना और ख्वारिज के लिए 4 रिहायशी कॉम्प्लेक्स तामीर किए हैं, जिनमें उनके लिए खुसूसी हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। अखबार के मुताबिक हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन बकाए बाहमी अफगान तालिबान रजीम के खात्मे से ही मुमकिन है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जोहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में जारी है, जिसमें ओमान जोहरी मुज़ाकरात की सालसी कर रहा है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अल बोसैदी ने एक बयान में कहा कि दोनों फरीकों ने नए और तख्लीकी ख्यालात और हल पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया है। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का।
आज अहमदाबाद में आईसीसी टी20 आलमी क्रिकेट कप टूर्नामेंट के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने 173 रन का हदफ 16.1 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दूसरा मैच भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान चेन्नई में जारी है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बैटिंग की जारी ताज़ा तरीन दर्जाबंदी फहरिस्त में पाकिस्तान के इफ्तिताही बल्लेबाज साहबजादा फरहान ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है। ऑलराउंडर कैटेगरी में पाकिस्तान के साइम अयूब जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा से सख्त मुकाबले के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के उभरते हुए स्पिन बॉलर उस्मान तारिक बॉलिंग की दर्जाबंदी में 59वें से 55वें नंबर पर पहुंच गए हैं। फैसलाबाद के डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर सैयद शाह मंजर अफरीदी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने और नौजवानों को टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में 40 मकामात पर 21 मुख्तलिफ खेलों की सहूलियात फ्राहम कर रही है। एबीपी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिन खेलों की सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं उनमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्क्वॉश, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स, कबड्डी, इंडोर गेम्स, जिम, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, कराटे और तीर अंदाजी शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल की बहाली के लिए जारी कोशिशों के हिस्से के तौर पर समीउल्लाह को पाकिस्तान हॉकी टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया है। तकर्रुरी की सिफारिश पीएचएफ की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने की थी, जिसमें ओलंपियन हसन सरदार और इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि यह फैसला एक वसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद निचली सतह पर तरक्की के जरिए पाकिस्तान हॉकी को मजबूत बनाना है। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम शामिल करेंगे तिजारती खबरें। सरसब्ज पाकिस्तान इक़दाम के तहत ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड सियाहत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में अहम सियाहती मकामात पर जदीद सहूलियात के साथ मरबूत सियाहती जोन्स कायम किए जा रहे हैं। सिर्फ 18 माह में 17 बुलंद बाला होटल्स और सियाहती मकामात समेत 78 सियाहती इमलाक के लिए मुआहदों पर दस्तखत किए गए। इनमें से अब 15 मुआहदों पर काम जारी है। फ्रांस में पाकिस्तान की सफीर मुमताज ज़ोहरा बलोच ने पेरिस में एक ज़रई शो सैलून इंटरनेशनल D1 एग्रीकल्चर का दौरा किया। उन्होंने जदीद ज़राअत और पायदार ज़रई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए किसानों, नए आइडियाज़ देने वालों और सनतकारों के साथ तामीरी तबादले ख्याल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख में पहली बार सरमायाकारों की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर गई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में पहली बार आज सरमायाकारों की तादाद 5 लाख से तजावज़ करके 5,02,024 रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि जून 2022 के बाद से 2,27,000 से ज्यादा नए सरमायाकार मार्केट में दाखिल हुए, जो न सिर्फ 3 बरसों में 83% इजाफे को जाहिर करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 4,266 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,68,893 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 692 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 619 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज यूनिटी फूड्स लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 71 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 488 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 291 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 145 में कमी, जबकि 52 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। PIA होल्डिंग कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 356 रुपये 60 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्सेस की कीमतों में 375 रुपये 95 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 40 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 90 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 378 रुपये 82 पैसे और 379 रुपये 49 पैसे। यूरो 330 रुपये 21 पैसे और 330 रुपये 80 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 49 पैसे और 74 रुपये 62 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 9 पैसे और 76 रुपये 22 पैसे, जबकि जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपया 80 पैसे और कीमत फरोख्त भी 1 रुपया 80 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,63,444 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,00,000
13,223 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 46,003 मीट्रिक टन बरामदी और 67,220 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और आप सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। पश्तो की मुमताज गुलकार और ड्रामा आर्टिस्ट महजबीन कजलबाज की आज छठी बरसी मनाई गई। वो 1958 में पेशावर में पैदा हुई। उनका असल नाम सुरैया बेगम था। महजबीन कजलबाज ने 13 बरस की उम्र में गाना शुरू किया। उन्होंने पश्तो ड्रामों में भी काम किया, लेकिन गुलकारी पर ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने उर्दू, पंजाबी, हिंदको, सिंधी, सराइकी, फारसी और तुर्की समेत कई जबानों में गाने गाए। अपनी मुतरन्नम आवाज पर उन्हें बुलबुल सरहद का खिताब दिया गया। उन्होंने सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी समेत कई एजाज़ात हासिल किए। वो 2020 में आज के दिन पेशावर में इंतकाल कर गईं। और रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको ले चलेंगे साइंस की दुनिया में। एक नई तहकीक से पता चलता है कि सिर्फ 2 दिन दलिया खाने से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को नुमायां तौर पर कम किया जा सकता है। जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन ने दरियाफ्त किया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोग जिन्होंने 2 दिन की कैलोरी पर पाबंदी वाली जौ पर मबनी ग़िज़ा की पैरवी की, उनके LDL कोलेस्ट्रॉल में वज़न में मामूली कमी और कम फ़िशार खून के साथ 10% कमी हुई। ये फ़वाइद 6 हफ्तों तक जारी रहे। तहकीक के मुताबिक दलिये ने आंतों के जरासीम को तब्दील किया जो ऐसे मुरक्कबात पैदा करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं और मजमूई मेटाबॉलिक सेहत में मुआविन होते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक मुख्तसर ज़्यादा जौ पर मबनी ग़िज़ा ज़ियाबीतिस और दिल की बीमारियों को रोकने का मौसर तरीका हो सकता है। चीन के साइंसदानों ने शंघाई तिब्बत सतह मुर्तफा पर लोनपोला बेसिन पर साइपर नीड मछली की नई बाक़ियात दरियाफ्त की हैं जो 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख साल कदीम मछली के आला तनव्वुर को जाहिर करती हैं। 4,600 मीटर की बुलंदी पर चैबुली और लनबोरी के मुकाम से जमा किए गए फॉसिल्स में नामुकम्मल खोपड़ी ढांचा और परों की हड्डी के आसार शामिल हैं। तफसीली तजज़िये ने इस बात की तस्दीक की है कि उनका ताल्लुक साइपर नीड से ख़ानदान से है और मुमकिन तौर पर 2 नई अक़साम की नुमाइंदगी करते हैं। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि बालाई इलाकों जिनमें गिलगित बल्तिस्तान और दीव चतराल शामिल हैं वहाँ पे मतला अवर आलूद, कहीं पे जुज़वी अवर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अवर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों के दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत अस्तौर में -1, स्कर्दू में 0, जबकि बगरोट में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह दूसरे शहरों के कम से कम दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी में 4, लाहौर में 13, कराची में 19, पेशावर में 11, कोयटा में 5, मुजफ्फराबाद में 10, गिलगित में 5, स्कर्दू में 0, श्रीनगर में 2, जम्मू में 14, लेह में -7, पुलवामा में 1, अनंतनाग में 0, जबकि शुपियां में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में सर्द रहा। तहम खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। सुबह के औकात में नारवा, सियालकोट और गिरदोनवा में हल्की धुंध छाई रही। सबसे ज्यादा बारिश सैदो शरीफ में 2, जबकि दीव में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 38 अरब रुपए मालियत के रमजान रिलीफ पैकेज 2026 का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म सऊदी अरब में हैं, जहां वो जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी की गैर मामूली वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, इटली, स्पेन और यूनान ने गैर कानूनी तर्क वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने हल्के की सतह पर तरक्याती आदाद व शुमार की डायरेक्टरी शाया करने का ऐलान किया है। वज़ीर तालीम ने पाकिस्तान ने तेल और गैस की तलाश के लिए 11 ऑन शोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि इस्लामाबाद के पास पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और मुआवनत में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। खबरनामा आपने सुना।
पैनल इंजीनियर थे रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद रांझा, मुदीर फॉरेन डेस्क इजाज हुसैन, न्यूज प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ आसिफा महफूज, मुजाहिद खान और हमारी न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।